अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है। उम्मीद करने ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੂਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਪ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਸਿਕਸ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਡਰੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੱਬ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੱਬ ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ IQ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਅਕਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਵੇ 'ਚ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਲੌਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ। वाह रे वाह बॉलीवुड, तिलकधारी हिंदू गुंडे। आज मैं तेरी पूजा करूंगा पुजारी। आज तेरे माथे से चंदन का टीका मिटाकर तेरे ही खून से तेरे माथे पर लकीर खींच दूंगा। ईमानदार मुसलमान। मैं मौत के बदले में मौत का सौदा नहीं करता। जान बख्शनी है तो बोल। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, मेरी जबान का तो एतबार कर। ये क्या कम स्टीरियोटिपिकल था कि तुमने तो फिल्मों में सिख कम्युनिटी को जोकर दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है? जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड। देखो कितना बेवकूफ है, पोजीशन तक पहुंचने का टाइम पूछ रहा है और ये डिस्टेंस का टाइम बता रहा है। ये फनी है, हाँ ये फनी है। कॉमेडी चल रहा है, ये कॉमेडी चल रहा है। अरे भाई साहब, इनके हिसाब से तो सरदार जी कोई आदमी नहीं होते, आदमी और सरदार तो अलग अलग होते हैं। सर आपसे मिलने 2 आदमी आए हैं और एक सरदार है। ये होता है पीक रेसिज्म। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। गोवा एयरपोर्ट जाना है जी। ओ सिंगा किथे? गोवा एयरपोर्ट। ठीक इधर आ। कौन कौन होता है ऐसा जो बीच कन्वर्सेशन को छोड़कर चला जाता है? यार किसी को इतना डम्ब तो मत दिखाओ। और एक आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनका नाम है शंकर, हमारे देश के हाई कमिश्नर। वो क्यों होता है? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਲਾਫ ਐਟ ਪੀਪਲ, ਲਾਫ ਵਿਦ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਸਾ IQ ਲੈਵਲ ਲੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਓਨਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਝੜੀ ਬਣਾਓ, ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹੈ, दूसरी दुनिया सारी सियाणी है। गड्डी है। अबे पागल, जो वो बोल रहा है आदमी को ढूंढना है, तो इसमें गड्डी कहाँ से आ गई? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? यही तो कॉमेडी है ना इनकी, सिखों को बेवकूफ दिखाना। हक दो। क्या बोले? हक दो। बड़ा गंदा आदमी है पाजी, लंगर में हकने को कह रहा है।
अरे भाई वो बाहें खोलकर तुम्हें हगने को थोड़ी कहेगा। आपकी ख्वाहिश हम अगली बार पूरी करेंगे। हम लोटा भी नहीं लाए इस बार। चले। राजा हिंदुस्तानी, सिंह इज ब्लिंग, कुछ कुछ होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी फिल्मों में बॉलीवुड ने सिख कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ डम्ब दिखाया है। उनकी एक स्टीरियोटिपिकल इमेज से सेट कर दी कि बल्ले बल्ले करते हैं और बेवकूफ वाली बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा हिंदुस्तानी का ये सीन देखो। आमिर खान करिश्मा कपूर से पहली बार जॉनी लीवर को मिलाता है और जॉनी लीवर कैसे करता है? ओए ऐसे ऐसे कौन करता है भाई? किसी से पहली बार मिल रहे हो। साहब, ये हमारा सबसे प्यारा यार है, इस टैक्सी यूनियन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। हाँ वही कितना फनी हो गया ना। सरदार जी को राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट में फर्क ही नहीं पता। हंसो हंसो, सरदारों पे हंसो। प्रेसिडेंट है। हाँ वही नॉट फनी। ओ तुसी मैम साहब दे की लगदे हो? अंग रक्षक। ओए बड़ा चंगा रक्षक जी, तो साडे भी अंग लग जाओ जी। अरे नहीं, वीडियो मत पोज करो। आपके पड़ोस वाले मंदिरों में घंटियां नहीं बज रही है। पाजी गले मिले हैं तो अंदर से सेक्सुअल घंटियां बज गई। अब पाजी कंफ्यूज है क्योंकि मेल से गले मिले हैं, फीमेल से नहीं। पाजी ट्राई भी करते हैं दूसरे लड़के से मिलकर, एक मिनट छोड़ ठीक है, लेकिन अब घंटियां नहीं बजती। लेकिन पाजी को पता चलता है कि जिससे गले मिले हैं वो लड़का नहीं लड़की है। तो फिर पाजी की कामुक भावनाएं फिर जाग जाती है। तू छुपरी है। तभी मैं सोचूं तेनू हाथ लगाने के बाद मेरे दिमाग में घंटियां क्यों बज रही थी। ओ खबरदार। अब एक समझदार आदमी तो यहाँ चुप हो जाता, लेकिन ये बॉलीवुड वाले अगर सरदारों को जोकर नहीं दिखाएंगे, डंब नहीं दिखाएंगे, उन्हें ठरके नहीं दिखाएंगे तो उन्हें मजा कहाँ आएगा? मजा नहीं आ रहा है। मेरे को छोकरी नहीं कह रहा, समझ गया? ओए 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 ओए। Yes, when a woman tells you to stop, मेरे को छोकरी नहीं कह रहा, समझ गया? you must listen and say oye oye. And this art of conversation is called harassment. My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। अब जॉनी लीवर और ये औरत डिस्कस करते हैं कि राजा यानी आमिर खान की मेम साहब यानी करिश्मा कपूर से शादी होगी या नहीं। ये शादी नहीं होने वाली। हो सकती है। और पता है ये डिसाइड कैसे होगा? जॉनी लीवर और उस लड़की के पंजे लड़ाने से। अल्लाह की शर्त लगी। वो तो आजा फिर पंजा लड़ाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके कुछ भी। अब क्योंकि पाजी को जोकर एंड कैरेक्टरलेस प्रूव करना है तो थोड़ा हौसले तो दिखाना पड़ेगा। गर्मी गर्मी गर्मी। वाह, ना 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 तो फिर ये पंजा हार जाता है और इन्हें यह एहसास होता है कि शादी का डिसीजन तो राजा और मेम साहब का पर्सनल है। तो इसलिए अब ये कुश्ती करके डिसाइड करेंगे। कुश्ती लड़ेगी तू? कुश्ती डर गई ना? बेशर्म आदमी। हार गई ना? हार गई। कुड़ी बनेगी? बनूंगी। क्या करेगी? करूंगी। चलो। एक सेकंड, शादी तो राजा और मेम साहब की करवानी थी ना? सोनिया, मैं मर जाऊंगा जाने। तो इनकी कैसे पक्की हो गई? ओए बॉलीवुड ओए। वो चूना लगा दिया। अरे अभी तक आपने हैरेसमेंट देखी कहाँ है? अब देखो। ये चीज़ देखो कि आया कि ठीक है किसी तरह या ऐसा जिहड़ा फन है वो वैलीडेट किया जा सकता है अगर सिख कम्यूनिटी या पंजाबी कम्यूनिटी इस तरीके दिखाया जाए। आया कि उस तो बेहतर ह्यूमर नहीं दिखाया जा सकता। जिथे इतने दे बड़े बॉलीवुड के डायरैक्टर ने जिन्होंने इतनी बड़ी मूवीज़ बनाई ने, आया कि उन्होंने यही फन बजदा वो इस तो कोई बेहतर नहीं हो सकता। ऐसे किरदार जिहड़े कि सारे सरदारां दे खाते पाते गए। थोड़ा जिहा इहदे च बेहतर दी गुंजाइश सी कि और इस चीज़ नूं इहदे च स्विच ऑफ करना चाहिए, नई चीज़ स्विच करनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बस यही प्रॉब्लम है, ऊंचे लोग नीचे से कैसे दिखते हैं? पग पहनी है उसका तो लिहाज करवा दो डायरेक्टर से। शर्म आनी चाहिए आपको। सिख भाइयों को इन सीन्स पर आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या है? आप एक कम्युनिटी को जोकर की तरह दिखा रहे हैं, डम दिखा रहे हैं, कैरेक्टरलेस दिखा रहे हैं।
एक हरेसर दिखा रहे हैं उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी ने सालों सालों तक देश की महिलाओं को बचाया है। सिख कम्युनिटी का इतिहास औरतों की इज्जत बचाने का है, नीचे झांक कर स्कर्ट में से देखने का नहीं। मैं ये देख रहा था कि मुझे लोग नीचे से कैसे लगते हैं। आप यहाँ आ जाए। जब धुरंधर में पग पहने हुए रणवीर सिंह की सिगरेट के साथ एक AI वाली ऑल्टर्ड इमेज वायरल हुई थी, सिख कम्युनिटी के लोगों ने काफी उसके खिलाफ आउटरेज दिखाया था, जबकि वो फोटो ही नकली थी। लेकिन ये वीडियोस, ये फिल्में तो असली में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे सीन के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि क्या है ये, कैसा पोर्ट्रेल है ये सिख कम्युनिटी का। क्योंकि राजा हिंदुस्तानी कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। सन ऑफ सरदार फिल्म में सिखों को मजाकिया दिखाने के नाम पर बेवकूफ दिखाया है। अबे बावले, कान ठीक करा ले, वो क्यों बोलेगी फेंक दे, और बोलेगी तो फेंक देगा। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बंदा मैं बुरा नहीं हूँ, आप किसी से भी पूछ लो यार, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई मुझे यार जानते ही नहीं। मजाक था भाई, मजाक। बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस फिल्म के एक सीन में अजय देवगन नारियल खरीदता है ट्रेन के अंदर बैठे बैठे खिड़की से। क्योंकि अब सिख कैरेक्टर को भोंदू दिखाना है तो ये कैरेक्टर ये सोचना भूल जाता है कि नारियल को बाहर की खिड़की से अंदर लूंगा कैसे, क्योंकि खिड़की तो पतली है, नारियल बड़ा। दिखा दिया ना भोंदू। लेकिन इससे बड़ी भोंदू शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा इस पे हंस रही है। अभी रुको, सारे दांत इस पे निकालेंगे। सुग्रीव बी लक्ष्मण सी सीता या डी राम। रुको जरा, मुझे भी यही लग रहा है, सीता सीता। इसके घर का नाम रामायण है, इसके बाप चाचा ताऊ, इनका नाम है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। फिर भी मैडम को रामायण का ABCD नहीं आता। डम सिन्हा। अब हंसो, अब एक पूरा जोक सुन लो। ओए मैंने नहीं जाना वापस, सब मुझे हिंदुस्तान लीवर बोलेंगे। जो हिंदुस्तान लीव करके आता है ना, उसको मोहल्ले वाले हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। और अब ये सुन लो। ये बंदूक चलती है बेटा जी, ये बुलेट चलती है, ये बंदूक खड़ी रहती है। ये जोक इसलिए नहीं डाला गया कि ये फनी है, ना ना ना, एवरेज आदमी बोलेगा तो आपको फनी लगेगा भी नहीं। ये जोक इसलिए डाला गया है ताकि आप ये सोचकर हंसो कि देखो सरदार जी कितनी डम बात कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। नहीं जी, ये तो नारियल है। कॉमेडी भी। क्योंकि अब इनकी आदत हो गई है सिख कैरेक्टर को स्टीरियोटिपिकली बेवकूफ दिखाने की। इनको दिखाना है कि सिख कम्युनिटी का बंदा बेवकूफ है, दिमाग से पैदल है और बल्ले बल्ले करता है। ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਲੌਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਮਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਰੋਂਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵੈਲਿਡ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ। नाश्ता ही रहता है। आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। सारे दिन लस्सी लस्सी करता है। मेरी तंदूरी चिकन, ओए मेरे लस्सी का ग्लास, मुझे लस्सी पिसी पियो। बैठो लस्सी वस्सी पियो। ओ तो लस्सी दा ऑर्डर करो, ए बोला ओ लस्सी वस्सी पिलाएंगे जबरदस्त है। वो लस्सी वस्सी पियो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं लस्सी दा ऑर्डर करो, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। मैं चुप। देखो यार, मैं राजस्थान के गंगानगर जिले में रहता हूँ। यहाँ राजस्थानी के साथ साथ लगभग हर बंदे को पंजाबी आती है, क्योंकि पंजाब टच होता है। ऊपर से 10वीं में मेरे पास तो पंजाबी सब्जेक्ट था। लोगों को तो बोलनी आती है, मेरे को तो लिखनी आती है, लेकिन फिर भी ये कौन सी पंजाबी बोली है मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। ये तो धोने लगता हैगा, ए तो इनामदार और काटे हैंगे। आहो, अरे कहना क्या चाहते हो? और अब सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो मुझे लगती है कि आप सिख कम्युनिटी को जोकर दिखाते हो, बदतमीज दिखाते हो, सारी चीज दिखाते हो, सब गलत है। लेकिन अगर सबसे इंसल्टिंग चीज उनके खिलाफ कुछ है तो वो ये है कि उनके खिलाफ 12 बज गए वाला जोक मारना। क्योंकि अगर आप पुण्य का काम करें और आपको उसी पर जोक मिले तो आदमी अंदर से टूट जाता है।
ये घड़ी देखकर इसलिए हैरान हुआ है क्योंकि इसको लगता है कि 12 बज गई रात की घड़ी देखने के बाद, इसलिए ये सिख बच्चा ऐसे एक्टिंग कर रहा है, बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहा है। अरे भाई जाकर इतिहास पढ़ो, 12 बजे सिख कम्युनिटी के लोग क्या करते थे, हमारी बहन बेटियों को बचाते थे। नादिर शाह जैसे लुटेरे जब हमारे यहाँ हमला करते थे और यहाँ की महिलाओं को उठाकर कौड़ियों के भाव आगे बेचते थे, उन महिलाओं की इज्जत बचाते थे सिख कम्युनिटी के लोग। 12 बजे दुश्मन की टोली पर हमला करते थे और माँ बहनों को छुड़वाते थे। लेकिन इन बॉलीवुड वालों को और आम जनता में भी बहुत से लोगों को ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। अरे लोगों को पता कहाँ है, हमारी इतिहासिक किताबों में लिखा कहाँ गया है। एनसीईआरटी तो पूरे मुगलों से भर रखी है इन्होंने, दिल्ली सल्तनत से भर रखी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह, इनके कहाँ है, इनका जिक्र है कहाँ? अरे भाई साहब, ऐसे पागलों की तरह कोई नहीं नाचता जैसे बॉलीवुड वाली फिल्मों में सिखों को नचवाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो। सिख कम्युनिटी कोई बेवकूफ़ कम्युनिटी नहीं है। अगर ये कम्युनिटी किसी काम से जानी जाती है तो वो है सेवा। कोई भूखा आदमी गुरुद्वारे जाकर अपना पेट भर सकता है, कभी वहाँ खाने की कमी नहीं होती। कहीं आपदा आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो वहाँ दो ग्रुप सबसे पहले पहुँचते हैं, एक तो सिख कम्युनिटी के लोग, दूसरे आरएसएस के लोग। लेकिन एक को बॉलीवुड में बेवकूफ़ दिखाया जाता है और एक को सोशल मीडिया पर गाली पड़ती है। ऐसी कम्युनिटी जिसके बहादुरी के किस्से किसी किताब के मोहताज नहीं है, चमकौर का युद्ध हो या फिर बैटल ऑफ मुक्तसर, सामने वाले की सेना कितनी भी बड़ी हो, बहादुरी की परिभाषा क्या है आप इस कौम से सीख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, अगर ये तीन नहीं होते तो आज हमारी पहचान ये हिंदू नहीं होती, या फिर आज हमारी ये पहचान सिख नहीं होती। और मेरा मानना ये है, पर्सनल मानना ये है, शायद आप भी ये मानते होंगे, हिंदुइज्म और सिखिज्म एक ही पेड़ की दो ब्रांचेस है, एक ही माँ के दो भाई हैं। और मेरी माँ हमेशा यही बोलती है कि भाई भाई का हाथ होता है और ये हाथ हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इसलिए मेरे हिंदू होते हुए ड्यूटी, हालांकि मैं हिंदू देखो जी, अपना इन्हों का जोड़ा ज्ञान है, इन्हों का जोड़ा इन्हें योगदान पाया है सारी गल। इन्हें अगली जी गल की वो एक डिफरेंट है जी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जी इन्हें गल की ना कि सिख कम्यूनिटी के हवाले ना वो बड़ी वैलिड है कि वो मूवी इस तरह दिखाया जाता है कि उन्होंने जी पहचान है सेवा करना, लंगर और चिकन कम्यूनिटी किचन कम्यूनिटी जो ना बहुत बड़ा मतलब लैवल पर किया जाता है। जबकि इस तो अलावा भी उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पैक्ट मतलब लैंदे पंजाब तो मैं जिस वक्त पहले रिएक्शन नहीं सी करीदा सी, एक आम आदमी तरह लाइफ स्पेंड करती थी तो असी नहीं सा जानते। लेकिन जिस वक्त मैं रिएक्शन करने लगा काफ़ी सारे लोगों ने मैंने अप्रोच किया, मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया तो मैं इस चीज़ फील किया। मैं रिएक्शन वीडियोज़ कर रहा, मेरे कभी पंजाबी चैनल है तो ये कभी नैगेटिव कमेंट्स नहीं आए पंजाबी कम्यूनिटी की तरफों, कोई हेट स्पीच नहीं किसी ने की, कोई ऐसा हेटफुल कॉमेंट नहीं आया। जिथे वक्त किसी फीमेल का ना होंगे रिस्पैक्ट ऑनर नाल मतलब गल होंदी है। दोस्त भी है साढ़े नाल राबते च, लेकिन उन्होंने बड़े एक पोलाइट वे च, बड़े एक अच्छे वे च, टेंडर वे च उन्होंने चीज़ां अपनियां पास करते हैं, गल करते हैं, अपना मशवरा देंगे, ओपीनियन देंगे। तो जिस तरीके प्रोजैक्शन की गई है सिख कम्यूनिटी की या पंजाबी कम्यूनिटी की, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो अज की गल करनी इस चीज़ के उत्ते कि डोंट ह्यूमिलेट, डोंट टारगेट सिख कम्यूनिटी, ऑनर दैम। और एक मैं बचपन तो देख रहा कि यह चीज़ां दिखाई जांदियां ने कि जनाब सिख जिहड़ा वो एक ऐसा करैक्टर है, डम करैक्टर कह लो या इस तरह का करैक्टर जिहड़ा ऐसियां हरकतां करदा जिहड़ा आम आदमी नहीं करता। वो किसी तरह का कोई फन नहीं है और आम लाइफ है वो देखो कि जितने जितने बड़े उहदे सिख ने। मैं हुण इत्थे बैठा ये नहीं कि मैं सिख कम्यूनिटी मेरा जिहड़ा वीडियो व्लॉग है ये ऊपर लै जाएगा, लेकिन मेरा पंजाबी कम्यूनिटी के हवाले नाल गल करने का मकसद ये भी कि यह चीज़ को एड्रैस करने की जरूरत सी, इसलिए मैं एड्रैस किया। अपना अपने का ख्याल रखना, खुश रहो, हसदे वसदे रहो, चढ़दी कला च रहो, रब तुहाड़े ते मेहर करे।